Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about the part 5 of the Constitution, that is the Union Executive, from Article 58 to 78. As we all know, the Indian Constitution is divided into 448 articles, 25 parts and 12 schedules. So part 5 is one of them. इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि the Indian government have 3 wings, that is legislative, executive and judiciary. Legislative is consist of Rajya Sabha and Lok Sabha, that is Council of States and House of People. And executive is consist of President, Vice President and Prime Minister. And judiciary is consist of Supreme Court, High Court and District Court. So हम इस वीडियो में एग्जीक्यूटिव के बारे में देखने वाले हैं. Let us start with part 5 of the Constitution, which has the chapter 1, that is the executive. India has parliamentary system of government and not the presidential system. So the question is, what is parliamentary system of government and what is presidential system? So it's all depends on the nature of relationship between legislature and executive. For the sake of your understanding, I will just make a small diagram, then you will understand easily. Let's say it's a big circle where the members of parliament are part of a legislative, as well as they are also appointed as a minister. Means the small circle denotes the executive. Means they may be appointed as prime minister or the ministers, which are the real executive. So the legislature and executive are equal. There is no difference between the legislative and executive. Instead of India, there are so many countries which have the parliamentary system, that is Britain, Canada, Japan and etc. Now we will understand the presidential system of government, where the legislative, the one circle, and the other circle, that is executive, they are distinct from each other. Legislative and executive, they are different from each other. The president are not part of a legislation. Now we will see about the president, vice president and prime minister. So I made this simple chart of president and vice president for the sake of your understanding. So you can easily remember their qualification, election, term, resignation, impeachment, powers and functions. So Article 52 talks about the president. President is the head of the state, so called as nominal or de jure executive. And here vice president, which is also called ex officio chairman of Council of States. Here Council of States means राज्य सभा के वो ex officio chairman है. अब देखते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में. President is not directly elected by the people. He is elected by electoral college, which is electoral college is consisting of the elected members of House of People, the elected members of Council of States, the elected members of legislative assemblies. ये elected members president को appoint करते हैं. Then the vice president के इलेक्शन में भी सेम क्राइटेरिया है. सर डिफरेंस ये है, इट इज नॉट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स अपॉइंट नहीं किए जाते हैं. इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस देन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल बी फाइनल. अब देखते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में. प्रेसिडेंट के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही है. देन ही हैव टू कंप्लीट हिज 35 ईयर ऑफ एज. वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही है, उन्होंने 35 ईयर उनका कंप्लीट करना चाहिए. एंड द थर्ड, ही शुड बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल. प्रेसिडेंट के लिए वो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर होना चाहिए. एंड वाइस प्रेसिडेंट में ही शुड बी द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा का वो मेंबर होना चाहिए. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज President should be the member of Lok Sabha and the Vice President should be a member of Council of States. Now the term of office. Here term means duration. उनके ऑफिस का ड्यूरेशन मतलब प्रेसिडेंट कितने ईयर्स तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है. तो प्रेसिडेंट के लिए वो 5 ईयर्स तक उनका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, एंड द वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही 5 ईयर्स क्राइटेरिया दिया हुआ है. और ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी टर्म्स. देन आता है रेजिग्नेशन के बारे में. प्रेसिडेंट कभी भी रिजाइन कर सकते. प्रेसिडेंट कैन रिजाइन देयर ऑफिस बाय गिविंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट. द वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होता है, तो उनको रेजिग्नेशन मिलता है. तो यहाँ पे वाइस वर्सा है, मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं. अब देखते हैं इम्पीचमेंट. सो हियर इम्पीचमेंट मीन्स द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस. means if president may remove from office by process of impeachment only on grounds of violation of constitution articles. के आर्टिकल्स है उनको प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट वायलेट करते हैं तो वो इम्पीच किए जाते हैं, लाइक वो रिमूव किए जाते हैं उनके ऑफिस से.
तो हम उन्हें इजीली तो रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए एक प्रोसेस है। फर्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को दोनों को भी 14 डेज नोटिस देना होता है। देन सेकेंड, जब वो रिजोल्यूशन पास होता है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो जरूरी है। एंड हियर वाइस प्रेसिडेंट में सिंपल मेजोरिटी से भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। जब वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है तब उन्हें रिमूव किया जाता है ऑफिस से। ये था इम्पीचमेंट के बारे में। ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन मीन्स जब प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं तब देन शपथ लेनी जरूरी होती है। तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ देते हैं। एंड इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट देयर, मीन्स दे आर absent, then they can give the oath and affirmation in front of the senior judges of the Supreme Court, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के सामने ओथ दी जाती है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स है, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। देन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन ऑन हिज नेम, दैट इज प्रेसिडेंट के नाम पे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट के लिए जाते हैं। देन लेजिस्लेटिव पावर में ही कैन समन, डिसॉल्व, प्रोग्रीव और ही कैन प्रमोलिगेट द ऑर्डिनेंस। ही हैव द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग। देन ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, 2 मेंबर्स इन लोकसभा। देन फाइनेंशियल पावर में उनको मनी बिल पास करने का पावर है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। यूनियन बजट लेड बिफोर पार्लियामेंट और ही कैन मेक एडवांसेस कॉन्टिजेंसी फंड। Then judicial powers, he appoints Chief Justice of India, judges of the Supreme Court. He have the power of pardoning, reprieve, respite, suspension. In military power, the president is the supreme commander of a defense force in India. So they have the military power. Then the emergency power, where national emergency is there, that is Article 352. ये था प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के भी सेम ही पावर्स होते हैं। इन द absence ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वर्क एज ए प्रेसिडेंट। देन वही पावर्स वाइस प्रेसिडेंट को भी होती है। Then veto power. Veto power means when bill is passed by the parliament, then it is presented before president for the signature. Then he has 3 options, like he may give his assent, he may withhold his assent, or he may return the bill for consideration of parliament. If a bill is passed again by parliament with or without parliament, then president must give his assent. So ये था veto power के बाद, which is said in article 114. अब देखते हैं तो president and vice president की salaries क्या है। vice president की salary है 3.8 lakh per month and द प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख पर मंथ। सो ये थे सैलरीज। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन आर्टिकल 74 में दिया है। सो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। हमने देखा है प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है और ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड वेयर एज द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट टू द प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट किसी को भी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। सो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी है। First, that is citizen of India. Second, he should be the member of either house of the parliament. As we all know, parliament have the houses, that is upper houses and lower houses. Then, if he is not, he must become member within a 6 month. 6 month में उनको member होना जरूरी है. And the fourth one, which is very important, that is leader of majority party in लोकसभा. मतलब जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। इफ देयर इज नो एनी लीडर फॉर मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, देन प्रेसिडेंट हैव द डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। देन आता है टर्म। सो टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे कोई 5 years 6 years ऐसा टर्म नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन आता है ओथ, मीन्स शपथ। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं। ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की सैलरी क्या है। सो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है 2,80,000 रुपीज। अब उनके पावर्स एंड फंक्शन क्या है ये देखते हैं। सो द फर्स्ट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री, एज वी सीन दैट ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देन सेकेंड, ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ये भी देखा है हमने। देन थर्ड, ही इज द लिंक प्रेसिडेंट पीपल पार्लियामेंट। देन फोर्थ, ही एडवाइजेस एंड इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट। 5, सिलेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। 6, distributes portfolios. 7th, expand or demand resignation. And the 8th, monitors the working. ये थे प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस। सो ये था हमारा पार्ट 5, दैट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।